Hello students, so I'm back with the new video. Here in this video I have solved the multiple choice questions and the chapter test questions of the chapter banking, and this is as per the 2024 edition of the ML Aggarwal book. So let's start with the first MCQ. If Shahrukh opened a recurring deposit account in a bank and deposited 800 per month for 1.5 years, so we will write the given data here. Deposited 800 per month, that means P is rupees 800. Then we have 1.5 years, which means the time, that is n, is 1.5 years. We can write it like this. We'll convert the mixed fraction into the improper fraction. 2 into 1. See, if you just notice at the pointer, you'll be able to understand. Is 2 into 1 is 2 plus 1 3. So 3 by 2 into, we have to convert this years into months. So we'll write 3 by 2 into 12, which is equal to 18 months. They're just asking that how much money did Shahrukh deposit, मतलब उसने कितना जमा कर दिया है. तो इफ 800 पर मंथ वो जमा कर रहा है और कितने महीने के लिए किया उसने, 18 मंथ्स के लिए. सो ही डिपॉजिटेड 800 रुपीज फॉर 18 मंथ्स, दैट इज 800 इंटू 18. सो वेरी सिंपल. तो फॉर्मूला क्या बन गया आपका? सो लेट्स राइट द फॉर्मूला फर्स्ट. टोटल मनी डिपॉजिटेड is equal to P, which is per month, into the total time, which is N. So 800 into 18, which is equal to 14,400, which is our option 2. Let's move to the next question. Mrs. Asha Mehta deposits rupees 250 per month for 1 year. Again, let's write the principal here. It's rupees 250 per month. Then we have time, which is N, that is 1 year. So 1 year को हम लोग लिखेंगे 12 months. In a bank's recurring deposit account, if the rate of interest, which is simple interest, I also mentioned this in my previous video, कि 8% जो इस चैप्टर में लिखा है वो सिंपल इंटरेस्ट होता है, ना कि कंपाउंड इंटरेस्ट. सो विल राइट द इंटरेस्ट which is denoted by R, that is equal to 8% per annum. Then the interest earned by her on this account is, so we need to calculate what is I. So I का फॉर्मूला क्या होता है, लिख लेते हैं यहाँ पे. I is equal to P into R into n plus 1, then divided by 2 into 12 into 100. So चलिए फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर देते हैं. So I is equal to P, that is 250 into 8 into 12 into 12 plus 1, which is equal to 13, divided by 2 into 12 into 100. तो देखिए 12 से 12 चला गया, and this 2 gets cancelled, and here it's 1 and then 4. ये 0 और ये 0 गया, और 5 से काटेंगे इसको. 5 2s are 10 and 5 into 5 is 25. देन ये 2 भी गया, यहाँ 1 हो गया, एंड ये दिस इज 2 अगेन. सो ध्यान दीजिए नीचे में कुछ भी नहीं बचा हमारे पास में. सो लेट्स राइट आवर आंसर. I इज इक्वल टू 5 इंटू इस टर्म का 2 इंटू 12 पूरा चला गया है इंटू 13. Therefore final answer, I is equal to 5 into 2 is 10 into 13 is rupees 130. So this is the interest earned by Mrs. Mehta. Okay, so let's take, okay, so option 3 is the correct answer. Let's move to the next question. Mrs. Sharma deposited rupees 500 every month. Again, the same thing. P is equal to rupees 500. P stands for principal, which is deposited per month in a cumulative deposit account for 2 years. So N is equal to 2 years. So
सो नाउ लेट मी गिव यू सम इनसाइट. क्यूमुलेटिव डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, दोनों एक ही बात होती है. व्हाई? बिकॉज क्यूमुलेटिव मीन्स टू एक्यूमुलेट, धीरे 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 इकट्ठा करना. सो रिकरिंग मतलब रीऑकरिंग. रिकरिंग का मतलब होता है रीऑकरिंग, मतलब आप बार बार पैसे जमा करते हैं. तो इट इज डिफरेंट फ्रॉम फिक्स डिपॉजिट, जहाँ पे एक सर्टेन अमाउंट होता है जो हम लोग एक साथ जाके बैंक में जमा कर देते हैं. सो इट्स क्यूमुलेटिव डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट इज द सेम थिंग, बट इट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी कॉल एज अ टर्म डिपॉजिट और अ फिक्स डिपॉजिट. तो इस बात का ध्यान रहे. फॉर 2 years, so n equal to 2 years, which is equal to 2 into 12 equal to 24 months. If the bank pays interest at the rate of 7% per annum, so R हमारा हो गया है 7% per annum, then the amount he gets on maturity is, amount that he gets on maturity means we need to calculate MV. तो चलिए फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले. I का होता है P इंटू R इंटू N प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 12 इंटू 100. एंड MV का फिर फॉर्मूला होता है ब्रैकेट में P इंटू N प्लस I. यहाँ पे P प्रिंसिपल, R रेट, N हो गया टाइम, और यहाँ पे I हो गया इंटरेस्ट, एंड MV हो गया मच्योर्ड वैल्यू या वैल्यू एट मैच्योरिटी, या फिर अमाउंट दैट द पर्सन गेट्स ऑन मैच्योरिटी. ओके, सो लेट्स पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला. 500 इंटू 7 इंटू 24 इंटू 24 प्लस 1 होगा 25 फॉर्मूला के हिसाब से, डिवाइड बाई 2 इंटू 12 इंटू 100. तो चलिए काटा पीटी शुरू करते हैं. 2 इंटू 12, देखिए 2 इंटू 12 होता है 24, तो 2 इंटू 12 होता है 24. ये दोनों साथ में आएंगे 24, और ये पूरा 24 कट गया. पर भी 1, यहाँ 1, यहाँ 1. ये 100 के दो जीरो जो है वो यहाँ 500 के दो जीरो से चले जाएंगे, और इसी के साथ नीचे में हमारे पास में कुछ नहीं बचा. सो आई हो गया 5 इंटू 7 इंटू 25. therefore I is equal to 875. we'll put this I in MV. P हो गया हमारा 500 into N is 24. Let's put it into brackets plus 875. Therefore MV हो गया 500 into 24 होता है 12,000 plus 875. Therefore MV हो गया हमारा 12,875 रुपीज में लिखेंगे. 12,875. So this is our final answer, option number D या फिर 4. सो 2024 के एमएल अग्रवाल के एडिशन में ये तीन ही क्वेश्चन हैं एमसीक्यू के, और इसके बाद शुरू हो जाता है हमारा चैप्टर टेस्ट. सो ओके, लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर टेस्ट क्वेश्चंस ऑन बैंकिंग. द फर्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर ध्रुव डिपॉजिट्स 600 per month in a recurring deposit account for 5 years at the rate of 10% per annum. तो चलिए थोड़ा धीरे चलते हैं. यहाँ ₹600 per month मीन्स प्रिंसिपल हो गया ₹600 per month. In a recurring deposit for account for 5 years, that means N हो गया हमारा 5 years, रेट ऑफ 10%. तो R लिख देते हैं 10% पर annum. फाइंड द अमाउंट दैट ही विल रिसीव एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी. मैंने पहले भी बोला है कि टाइम ऑफ मैच्योरिटी के पहले ये देख ले कि क्या पूछ रहे हैं. कभी कभी किसी क्वेश्चन में लिखा रहता है कि इंटरेस्ट दैट ही विल रिसीव एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, और हम लोग तुरंत एक गलती कर बैठते हैं, टाइम ऑफ मैच्योरिटी देख के एमवी समझ लेते हैं. बट ध्यान से पढ़ने की जरूरत है. फाइंड द अमाउंट पूछा है दैट ही विल रिसीव एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, तो मैच्योरिटी के टाइम पे अमाउंट दैट इज एम वी निकालना है हमें. ओके, सो नाउ लेट्स राइट द फॉर्मूला फर्स्ट. आई इज इक्वल टू पी इंटू R into n plus 1 divided by 2 into 12 into 100. तो चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें. i का वैल्यू i में ही वैल्यू पुट करेंगे. 600 into R into n, that means, oh I'm sorry, यहाँ कन्वर्ट करना भूल गए.
5 into 12 होगा यहाँ इक्वल टू 60 months. ओके सो रुकिए, इसको मैं ठीक से लिख देता हूँ. I is equal to 600 into 60 into 60 plus 1, that is 61 into 10 divide by 2 into 12 into 100. तो चलिए काटने पीटने का कार्यक्रम शुरू करते हैं. 0 0 गॉन, 0 0 गॉन, 12 will get 5, then this 2 goes away and ये गया 5. सो आई हमारा क्या हो गया, 6 इंटू 5 इंटू 61 इंटू 5, 9150, दैट इज 9150. अब हम पुट करेंगे इस वैल्यू को एमवी के फॉर्मूला में. एमवी का फॉर्मूला होता है पी इंटू एन प्लस आई. तो चलिए पुट कर देते हैं. एमवी इज इक्वल टू 600 इंटू 60 प्लस 9150 which is equal to 36,000 plus 9150. Therefore, so MV is equal to 45,150. So this is our final answer. Now let's move to the next question. Ankita started paying rupees 400 per month in a 3-year recurring deposit. After 6 months, her brother Anshul started paying 500 per month. तो यहाँ ध्यान देने की बात है कि अंकिता जब शुरू कर चुकी थी पे करना, उसके 6 months बाद अंशुल ने पे करना शुरू किया है. तो चलिए सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं फॉर अंकिता, और यहाँ लिख लेते हैं फॉर अंशुल. तो अंकिता के लिए 400 पर मंथ, सो पी हो गया ₹400. 3 ईयर रिकरिंग डिपॉजिट की बात हो रही है, तो एन इज इक्वल टू 3 into 12, दैट इज इक्वल टू 36 months. और अंशुल करता है आफ्टर 6 months. सो अंशुल का एन जो होगा वो होगा 30 months, ₹500 पर मंथ. पी है ₹500 और 2.5 years लिखा है, तो 2.5 will get converted into 30 months only. द बैंक पेड 10% सिंपल इंटरेस्ट फॉर बोथ. इसके लिए आर 10% है पर एनम, और अंकिता के लिए भी आर है 10% पर एनम. एट मेच्योरिटी हु विल गेट मोर मनी एंड बाय हाउ मच. सो अगेन वी नीड टू कैलकुलेट एम वी फॉर अंकिता एंड एम वी फॉर अंशुल, एंड देन वी नीड टू कंपेयर कि किसे ज़्यादा मिला है या किसे कम मिला है. तो चलिए लिख लेते हैं. आई का फॉर्मूला अगेन पी इंटू आर इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 into 12 into 100. तो चलिए आई में पुट कर देते हैं वैल्यू. इज इक्वल टू पी, दैट इज 400 इंटू आर हो गया आपका 10% इंटू एन हो गया आपका 36, ब्रैकेट में 36 प्लस 1 37 डिवाइड बाई 2 into 12 into 100. तो ये 100 से इससे उड़ाएंगे और यहाँ आएगा 4, 12 से इसे उड़ाएंगे विल गेट 3, 2 से विल गो आफ्टर 4, सो दिस विल बी 2. सो हमारे पास में रह गया आई इज इक्वल टू 2 into 10 into 3 into 37. Therefore आई का वैल्यू आएगा ₹2220, दैट इज 2220. चलिए निकाल लेते हैं हम लोग एम वी.
MV का formula will get P into N plus the interest. P है हमारा 400 into N है 36 प्लस इंटरेस्ट जो अभी हमने निकाला 2220। तो MV हमारा प्लस 2220। देयरफॉर फाइनल आंसर MV का हो गया है ₹16,620। तो चलिए अब हम लोग निकाल लेते हैं अंशुल की। यही फॉर्मूला यूज होगा, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। I इज इक्वल टू 500 इंटू 10 इंटू 30 इंटू 30 प्लस 131 डिवाइड बाई 2 इंटू 12 इंटू 100। अगेन ये 100 और ये गया 15 और 3 इंटू 4 इज 12 और यहाँ बच गया 5। देन ये गया 2 इज 1 टू 5। दैट्स ऑल। फ्रेश लिख देते हैं हम लोग। नीचे में हमारे पास में 2 बचा है, ऊपर में हमारे पास बचा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 31। सो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 31। क्रॉस चेक कर लेते हैं। 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 31 बिल्कुल सही। आगे बढ़ेंगे। आंसर इज 1937.5 रुपीज 1937.50। So now let's calculate the maturity value. Again, we'll not write the formula, we'll just put it here. So 500 into 30 plus, we got the interest 1937.50. So 53 is 15 होता है 15,000 plus 1937.50। तो maturity value आ गया फाइनल हमारे पास में 16,937.5 is our final answer here for MV of अंशुल। maturity value जो अंशुल को मिलेगा, क्वेश्चन में ये लिखा है कि किसे ज्यादा मिला एंड बाय हाउ मच। सो let's do the difference part here. Difference 16,620 versus 16,937, obviously 16,937.50 minus 16620, ये याद रहे अंशुल का है एंड दिस इज ऑफ अंकिता। सो क्लियरली अंशुल ने ज़्यादा अर्न कर लिया है सेव करके, बट कितने से? ये हुआ है आपका रुपीज़ 317.50। फाइनल आंसर लिख देते हैं इसका हम लोग। सो अंशुल will get more money than Ankita by the difference amount, that is 317.50. So this full statement is our final answer. So now let's move to the next question. So let's start this question. Shilpa has a 4-year recurring deposit account in Bank of Maharashtra and deposits 800 per month. That means fee is rupees 800. Then if she gets 48,200 at the time of maturity, so MV will be 48,200. We need to calculate rate of simple interest, means R, and the total interest earned by Shilpa, that means I. 4-year recurring deposit means N equal to 4 into 12, 48. We'll generally apply the formula of I first. So our I is P into N into N plus 1 into R divided by 2 into 12 into 100. So let's put the values now. So 800 into 48 into 48 plus 1, that is 49, into we don't know R yet, and it will be divided by 2 into 12 into 100. So we'll strike off this 100 and we'll write 8 here. This 2 into 12 is 24. We'll strike off 48 and we'll write 2 here.
So I is equal to 8 into 2 into 49 into R. 8 into 2 into 49 into R. So interest is 784 R. 784 R. Now simply we'll put this value in the formula of matured value, that is MV is equal to P into N plus the interest. So MV is given here, which is equal to 48200. Principal is given 800, N is given 48, and interest is given as 784 R. Just do the calculation here. 48200 is equal to 800 into 48. So 48 into 8 will be 384, and then we'll just write the two zeros plus 784 R. So we can just rearrange them. 784 R stays there, and 48200 minus 38,400, or R is equal to 9,800 divided by 784. Will come to 12.5% per annum. So this is our rate. Now we'll just put this rate. So we'll just put the rate value here in interest, and we'll get the answer for I also. I is equal to 784 into R, that is 12.5. Therefore, I will be rupees 9,800. So yes, this is our final answer. Now let's move to the next question. So Mr. Chaturvedi has a recurring deposit account in Grindlays Bank for 4.5 years at 11% per annum simple interest. So let's write the given details first. N here is 4.5 years, which means 4.5, that is 4.5 or 4.5 into 12, 54 months. So now we have our N with our side, then we have R. R is equal to 11% per annum. If he gets rupees such and such at the time of maturity, so maturity value or matured value हो गया है आपका rupees 101, which is 1,418.75 paise, and we have to find the monthly installment, that is P. तो चलिए आई का फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पे. P into R into N into N plus 1 divided by 2 into 12 into 100. सो P हमें ऑलरेडी पता नहीं है, तो कुछ नहीं कर सकते. विल जस्ट राइट P देयर. R हमें पता है, जो कि 11 है. देन N इज 54 और N plus 1 is 54 plus 1, that is 55, divided by 2 into 12 into 100. So let's cancel them out. 27, और ये पूरा 100 वाला कटेगा 2 into 50. देन 5 से जाएगा, यहाँ बचेगा 10, and here it will be 11. Where 3 into 4 is 12, 3 9s are 27. What else? Okay, nothing then. So I हमारा हो गया है 9 into 11 into 11 into P. 9 into 11 into 11 into P, divided by 2 into 4 into 10. 2 into 4 into 10. Okay. So let's write the final answer of I equal to 1089
into P divided by 80। सो इस वैल्यू को हम एक बार साइड में रखेंगे और MV के फॉर्मूला में पुट करेंगे। P इंटू एन प्लस आई। MV का वैल्यू दिया है 101418.75 विच इज इक्वल टू P इंटू 54 प्लस 1089P divided by 80। यहाँ पे सिंपली वी कैन टेक LCM। सो 54 इंटू 80 4320। तो यहाँ हो गया 4320P प्लस 1089P divided by 80। So this 80 goes there। 101418.75 into 80 which is equal to 5409P। Next step will be 10141875 डिवाइड बाई 100 आई एम राइटिंग, क्योंकि 75 के पहले जो पॉइंट था वो मैंने नीचे 100 के फॉर्म में लिखा। एंड वी नो ऑलरेडी दैट इट इज इनटू 80 एंड देन डिवाइड बाई 5409। या सो इट्स टू बिग ऑफ अ नंबर। तो ये काटने की कोशिश करेंगे हम लोग। 5 इंटू टू इज 10, 5 इंटू टू 0, 5 इंटू टू 5 is 40, 5 3 is 15, 5 7 is 35 and 5 5 is 25। 2028,375 into 8 divide by 2 into 5409। ओके, तो इन डिजिट्स को ऐड कीजिए। 2 + 2 is 4 + 8 is 12 + 3 is 15 + 5 is 20 + 7 is 27। सो 3 के टेबल में ही आता है। सिमिलरली 5409, 9 + 4 13 + 5 is 18। सो ये दोनों 3 से कॉमनली डिवाइड हो सकते हैं। तो चलिए लिख देते हैं। 3 into 1 is 3, 3 8 is 24 और फिर यहाँ होगा 3 into 6 18, 22 3 7 is 21, 3 6 18, 3 1 is 3, 3 2 is 6 and 3 5 is 15। अगेन ये 3 is the common factor between this and this। 6 एक बार चेक कर लेते हैं। 6 + 7 is 13 + 1 is 14 + 6 20, 22 and 5 is 27। बिल्कुल, तो वापस 3 से स्ट्राइक ऑफ कर देंगे इसको। 3 6 is 18, 0 and 1। So again this will go by 3, 3 2 is 6, again 3 2 is 6, 3 5 is 15, then 3 3 is 9, 3 7 is 21 and then 3 5 is 15। तो चलिए इसे फिर से फ्रेश तरीके से लिखते हैं। P is equal to 225 375 into 8 divide by 2 into 601, 2 and this is gone for 4। The answer of P will be rupees 1500, which is what you need to calculate. So last question. Okay, so let's start this question. Rajiv Bhardwaj has a recurring deposit account in a bank of 600 rupees per month. So P is equal to rupees 600. If the bank pays simple interest of 7% per annum, that is our rate of interest R is equal to 7% PA, which is per annum. Then we got, okay, so he gets 15,450 as a maturity amount. So MV is equal to rupees 15,450. Then find N here. Total time will be N. Okay, so let's put the values in the formula. I is equal to P into R into N into N plus 1 divided by 2 into 12 into 100. Let's put the value. 600 into
7 into n plus 1, और नीचे आ गया 2 into 12 into 100. काटाकुटी करते हैं, which means we'll divide it. So 100 goes here, this is 6, and 6 is gone 1, and this gets out to 2. 6 into 2 is 12, and that's all, nothing else to write here. So finally I is 7 into n is 7n, into n is n square, so 7n square plus 7n into 1, that is 7n, whole divided by 2 into 2 is 4. So let's put this value in the formula of maturity value or the matured value, mv, which is p into n plus I. So let's put the values here. 15450 is equal to 600 into n plus 7n square plus 7n whole divided by 4. So simple step here, 15450 remains as it is on the left side. We'll take LCM. So this whole is 1 and then 4. So LCM will be 4. So this will be into 4. So the numerator will also be multiplied by 4. We will get 2400n plus 7n square plus 7n. Okay. So now this 4 is cross multiplied there. 154, then 50 is into 4 is equal to 2407n. We'll just add up the similar terms, the like terms, then we'll get n square here. 15450, that is 15,450 into 4 is equal to, so we'll just write on the extreme left, this is 61800. So 61800 is equal to 2407n plus 7n square. 7n square, we'll just rewrite the terms, rearrange the terms. We'll just move this numerical part, the constant part, sorry, to the right side. So 7n square plus 2407n minus 61800 is equal to 0. So now we just get the equation in this form, and by splitting the middle term, we'll start doing this question. So let's proceed. So first we need to multiply the 61800 into the coefficient of n square. So it will be, okay, so see, I'm doing the rough part here on this side, as the calculations are a bit tricky, not that much, but this question is a little different for whatever we have done till now. So see, 7 multiplied by 61800. Okay, just look at the calculation. I'll just change the color of the pen. Whatever I'm doing by the green ink, just treat everything as your rough part, your rough column portion, and whatever I'm doing with the red ink, that you need to show in your working. Okay, so I'm doing it here itself in front, because so that you can understand the nuances of this question. So 61800 into 7, ये करने से मिलेगा 432600, 432600. मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार, जो भी मैं ग्रीन इंक में कर रहा हूँ वो सारा रफ पार्ट है। मैं सामने इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा, इस क्वेश्चन में थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है हमें, थोड़ा अलग है बाकी क्वेश्चनों से, तो थोड़ा समय लगेगा और थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इसका। अगेन, तो सबसे पहले सिंपल 2, 2 into 2, then 1, 6, 300. Next, again 2, 1, 0, 8, 1, 5, 0. Again by 2, 5, 4, 0, 7, 5. 3 से जाएगा 1, 8, 0, 2, 5. Then it will go by 5. 3 is a 15. 5, 6 is a 30. 0, 5.
अब फिर से 5 से जाएगा ये। 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5। नेक्स्ट ये जाएगा 7 से। 7 इंटू 1 इज 7, 0, 7 3 जा 21, 103 is a prime number, so that's all. So see, 103 is a prime number, so yes, that's all. This is our final number. We'll just write it here, 103 into 1. Okay. हमें ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हम लोग को मिलेगा 2407। आई एम रिपीटिंग, वी हैव टू मेक अ सेट ऑफ फैक्टर्स सच दैट व्हेन वी ऐड और सब्ट्रैक्ट देम वी गेट 2407। तो ये मैं कुछ एलियन वाली बातें नहीं कर रहा हूँ। दिस इज द प्रोसेस ऑफ डूइंग द स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म फैक्टर। जिस तरीके से हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ये वही स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का रूल है। कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई किया है, 7 इंटू 61800, वो आया 432,600। इसका मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, या फिर बोल सकते हैं कि जो भी प्राइम फैक्टर्स थे वो मैंने बाहर निकाल लिए, 222, 355, 7 एंड 103। अब इन्हीं नंबरों से दो सेट ऑफ फैक्टर्स बनाने हैं जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2407 आ जाए, राइट। तो अब फैक्टर्स कौन कौन से होंगे ये देखने के लिए सबसे इजी तरीका ये है कि ये देखिए यहाँ है 7। अब आगे में हमें क्या करना है, वी नीड टू टेक 7 कॉमन, राइट। इनफैक्ट 7n कॉमन लेंगे हम लोग, जो मैं बाद का प्रोसेस बता रहा हूँ। तो पहला जो फैक्टर रहेगा या फिर दोनों में से कोई एक फैक्टर जो रहेगा उसमें 7 रहना ज़रूरी है, राइट। तो 7 अगर रहना ज़रूरी है तो ये चीज़ सोच के चलें कि लेट्स कंसिडर 7 फर्स्ट। अब एक 7 ले लिया हमने। अब इजीली क्या करेंगे, 2 ले लेते हैं, सारे 2 ले लीजिए, ये 3 ले लीजिए और एक 7 इसके साथ में रखिए। तो चलिए करके देखते हैं, थोड़ा सा ट्रायल एंड एरर मेथड सॉर्ट ऑफ हो जाएगा, बट इट्स वर्थ स्पेंडिंग टाइम। तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 3 इज 24, 24 इंटू 7 कर दीजिए, 24 इंटू 7 हो गया 168, राइट। अब बच बच क्या गया हमारे पास, हमारे पास बच गया ये 5, ये 5 और ये 103। सो ये तीनों करके देखिए, 5 इंटू 5 इंटू 103, ये आएगा 2575, 2575। ओके। तो अब इनके बीच में रिलेशन बैठाने की कोशिश करते हैं। 2575 ऑलरेडी 2407 से बड़ा है, तो ऑब्वियसली विल जस्ट सब्ट्रैक्ट 2575 माइनस 168। तो करके देखिए कि 2407 मिलता है या नहीं मिलता है। अगेन सो दिस इज 7, कट के हो गया 6, ये हो गया 0, ये 5 माइनस 1 इज 4 और ये 2। सो वी गॉट एग्जैक्टली 2407। अब आपको लगेगा कि ये चीज़ तो मुझे पहले से पता था इसलिए मैंने ये कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको एक, जिसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल, या सॉर्ट ऑफ आपको कुछ 3 4 फैक्टर्स लेके बहुत सारे इक्वेशन सॉल्व करके एक अंदाज़ा मिल जाता है कि कौन कौन से नंबर हम लोग ले सकते हैं। तो एक उसी अंदाजे से मुझे लगा कि एक 7 लेना चाहिए और ये सारे सिंपल नंबर लेने चाहिए। तो जनरली ये मेथड काम कर जाता है, बट कुछ सम ऐसे हो सकते हैं जिसमें हो सकता है कि ये नंबर्स में से आपको एक और नंबर लेना पड़ जाए, तो उसमें हार्डली 5 मिनट लगता है, इट विल टेक हार्डली 5 मिनट्स। और आपको खुद ही एक आइडिया लग जाएगा देख के कि मैं इससे बड़ा कोई फैक्टर बनाऊं, जैसे 168 बना मेरा, तो 168 से बड़ा मैं फैक्टर बनाऊं या नहीं बनाऊं। और प्लस माइनस करके नियर अबाउट भी अगर इसके आ जाता है तो हम लोग को वैसे भी एक आइडिया लग जाएगा कि 2407 निकालना कैसे है। सो इतना बड़ा नंबर है, ये देख के घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ओके, सो आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन में। ये अब ये दो फैक्टर हमारे पास बन गया, 2575 एंड 168। तो नॉर्मली हम लोग जैसा करते हैं, 7n² प्लस 2575n माइनस 168n माइनस 61800 इज इक्वल टू 0। तो 7n² और 2575n से कॉमन जो दिख रहा है वो निकाल लेंगे, दैट इज 7n। तो ये रह गया हमारा n प्लस, अब सिंस 2575 में 7 एक फैक्टर नहीं है, तो हम लोग लिखेंगे 2575 डिवाइड बाई 7, और ये जो n है ये यहाँ कॉमन आ गया, माइनस 168, ये निकालते ही यहाँ रह गया n और ये प्लस हो गया। ध्यान रहे कि ये दो माइनस है, और यहाँ प्लस इसलिए आया क्योंकि जब मैं ब्रैकेट पुट लगा दे रहा हूँ यहाँ पे, तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा और प्लस इंटू माइनस अगेन यहाँ माइनस हो जाएगा, इसलिए n प्लस
61800 से जब हम 168 बाहर निकालेंगे, यानी कि जब हम लोग डिवाइड करेंगे, लिख के दिखा देते हैं, 61800 डिवाइड बाई 168, ये इस तरीके से होगा, इक्वल टू 0। अब जब आप 61800 और 168 को डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 2575/7। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ नीचे, आप वीडियो को पॉज करके काइंडली 61800 डिवाइड बाई 168 करके देखें, आपको जरूर 2575/7 ही मिलेगा। 7n 2575 डिवाइड बाई 7 माइनस 168 n प्लस 2575/7। तो जो मेन चीज़ ध्यान देने की है यहाँ पे वो ये है कि क्यों हम लोग इतने कॉम्प्लेक्स मेथड में जा रहे हैं। ये देखिए, यहाँ हो गया n, फिर हम लोग कॉमन लेंगे तो मिलेगा n प्लस 2575/7, और एक और फैक्टर मिलेगा 7n माइनस 168। अब आंसर तो यहाँ से भी निकल सकता है, पर ये इतना कॉम्प्लेक्स मेथड में जाने का कोई यूज़ नहीं है, जहाँ आपको 2575/7 लिखना पड़ रहा है, 61800/168 लिखना पड़ रहा है। इससे अच्छा अगर थोड़ा एडजस्टमेंट्स हम लोग इसी स्टेप में कर डालें तो इतने कॉम्प्लेक्स स्टेप से हम लोगों को नहीं गुजरना पड़ेगा। तो देखिए कैसे होगा ये चेंज। इस स्टेप को मैं इस तरीके से नहीं लिख के यूं लिखूंगा, 7n² माइनस 168n प्लस 2575n माइनस 61800 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से मैं कॉमन लूंगा 7n, तो रह जाएगा n माइनस 24 प्लस यहाँ से मैं 2575 डायरेक्टली कॉमन ले लूँगा, और फिर से मेरे पास यहाँ रह जाएगा n माइनस 24 इज इक्वल टू 0। वेरी सिंपल। 7n, अब मैं n माइनस 24 कॉमन ले लूँगा तो मेरे पास रह जाएगा 7n प्लस 2575, और एक और फैक्टर बनेगा n माइनस 24 विच इज इक्वल टू 0। जीरो प्रोडक्ट रूल लगा देंगे यहाँ पे, इधर 7n प्लस 2575 इज इक्वल टू 0 और n माइनस 24 इज इक्वल टू 0। अब 7n इज इक्वल टू माइनस 2575 होगा, और n फाइनली आ जाएगा माइनस 2575 डिवाइड बाई 7, और राइट साइड में यहाँ पे होगा n इज इक्वल टू डायरेक्टली 24। अब हम ऑलरेडी जानते हैं कि n होता है टाइम, और टाइम कभी भी नेगेटिव हो नहीं सकता, तो स्ट्रेट अवे ये आंसर नहीं होगा, विल गो फॉर दिस आंसर। सो n इज इक्वल टू 24 मंथ्स और 2 ईयर्स। और यहाँ अगर आपको रीजन लिखना हो एग्जाम में, और यहाँ रीजन लिखने के लिए स्ट्रेट अवे राइट दैट since time can never be negative, so we reject this answer, or this option is not true. Therefore, n equal to 24 is our final answer. So that's all for today. So अगर आपको मेरे explanations अच्छे लगे तो इसे शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, और अगर कुछ सजेशंस देना हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।